So good afternoon, all of you. Started with the new concept, right? So new topic, which is I think very essential, and it is requested by the our group member that we have to learn how to tackle the psychiatric cases, because most or large number of the our practice consist of this psychiatric disorder, because most of the time we treated such a diseases like anxiety disease, depression, OCD. The anxiety disorder and the mild depression is so much prevalent that कि sometimes we don't understand कि this we are dealing with the psychiatric disorder. मतलब हम उसको ठीक कर देते हैं बाय मेडिसिन, पर हमको पता नहीं रहता है कि हमने एक प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ठीक किया है, क्योर किया है विद द होम्योपैथिक मेडिसिन. But sometimes the most of the practitioners face the lot of difficulty in handling the such cases belongs to a psychiatry, right? Why this so? Because in our graduation there is no separate entity for the psychiatric disease. This psychiatric disorder comes under the medicine department or medicine subject, but it was or it will never taught, right? So that's why the homeopathic graduation students, when they start practice, don't know much about the psychiatric illness. Whatever they understand or know is by their experience, by reading the books, right? But as a MD psychiatry, I was completed my MD psychiatry in the 2010. It was the 2007 batch in ML Dhole, Mumbai, right after graduation in the 2005. So there where the which was the national and reputed college, Dr. ML Dhole Postgraduate Institute in the Palghar, and having the lot of clinical exposure related to subject the psychiatry and related to other subject also, where I have and my team and my whole batch which is belongs to a psychiatry department gained the lot of or immense learning directly and indirectly from the patient by admitting the patient in OPD, patient in IPD, and treated them with the homeopathic medicine. That is more important. When we understand, when we see the patient and we are treating the patient with the homeopathic medicine, which is violent, which is maniac disorder, which having the maniac like disorder, which having the alcohol withdrawal symptoms, where they shows the aggressive pattern of behavior, which is difficult to manage by a single person or single doctor, which require the team of doctor. Schizophrenic or psychotic episode patient, which again difficult to manage, but that time with the proper guidance with our teacher Dr. Kumar Dhawle sir and Manoj Patel sir, we have achieved the milestone there in treating the psychiatric patient with the homeopathic medicine in a very nice way, right? So there are a lot of experience then I have implement in my own practice and get the good results that I desire to share that result or that cases with you, because homeopathy is the holistic science. Barabar. So that's why we are treating the each and every case. There is no specialization as such in the homeopathy, though there is a specialization in the MD, but we are mostly the peoples are not practice accordingly. Though I am done my I did my MD in psychiatry, but I am not just only focusing on the psychiatry, right? But I have given the special importance to these cases. That's why we can able to handle that case in a very easy way,
right? So try to understand this. I'm going to show you the from the initial what is the psychiatry and what is the classification of disease in the psychiatry. Then the most important part in as far as the diagnosis जैसे concern होता है कि हमारे इसमें जब हम पेशेंट आता है तो व्हाट वी सी द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, द फिजिकल डायग्नोसिस, वेदर इट इज टॉन्सिलाइटिस है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पाइल्स है, फिशर है, वेरिकोज वेन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, ये देखते हैं. तो दिस इज द फिजिकल डायग्नोसिस एंड फिजिकल डायग्नोसिस रिक्वायर द फिजिकल एग्जामिनेशन, right? Physical diagnosis require the physical examination. In the same way, the mental diagnosis or psychiatric diagnosis required the mental psychological assessment of the patient. That's called as the mental status examination. That is called MSE, which is the very important part in understanding or diagnosing the psychiatric case, right? लाइक आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन, by giving the proper information from the patient, like that this mental state examination is very very important in order to understand the psychiatric clinical condition. Now this is we are not, or you are not a psychiatrist, we are general, you are general practitioner, I am also general plus homeopathic psychiatrist. With respect to this, I am trying you to explain the important points only, which is useful in order to understand the psychiatric diagnosis and to how to manage with the homeopathic medicine. That means the approach, so that in your practice you can pick up, you can diagnose, and you can manage the psychiatric illness very well, right? So if you have any query regarding the whatever I'm talking about or showing you the slide, you can ask me at the last of the session. Now the one session is not sufficient to understand and to explain the whole psychiatric clinical cases, right? Try to understand. One condition is not suffice, right, to understand the whole psychiatry. That's why I think we need a 8 to 10 session where we individually show you the single clinical conditions with patient video and their analysis, diagnosis, and homeopathic approach and understanding, right? So ready for it? Now psychiatry is broadly classified into the two, broadly classified in general, right? One is the neurosis and second is the psychosis. I already explained this in my previous OCD cases. One is the neurosis and second is the psychosis. Now, what is the difference between neurosis and psychosis? This is very important, because why this difference is necessary to understand? Because neurotic disease is easy to manage with the homeopathy or any other medication or any other mode of treatment than the psychotic disease. Why this so? Neurosis means we are the patient who are in touch with the reality. They are oriented to time, place, and person, right? They are in the reality. They touch with the reality. They don't lose their reality, don't lose the presence phenomena, or they aware about the surrounding, what you are talking, whether it is a partially or completely, that is the different, but they aware about the things, they are aware about that we are talking about the doctors and all these surroundings and other person, family member, all this is called neurosis. That includes the anxiety disorder, mood disorder, all the other eating disorder, all disorders, right? But in psychosis there is a, this is called delusional disorder, which is characterized by the schizophrenia. That means where the reality to real touch to reality is lost, where the patient doesn't understand what is the process is going on,
what is surrounding क्या है, कौन बोल रहा है, and the talk is the irrelevant. When there is an irrelevant thing, when the behavior is the irrelevant, when it is characterized by it is delusion, false belief, and in spite of the lot of convince कि ये ऐसा नहीं है ऐसा है, कि बोलेगा कि नहीं जो बाजू में कुछ लोग हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं. This is the delusional. So all these delusional phenomena where the patient lost touch with the reality and surrounding comes under the psychosis. And such a kind of condition, psychosis or delusion or delusional disorder or schizophrenia, is quite difficult to treat. मैं तो बोलूंगा it is very difficult to treat. Right? It is very difficult to treat as comparative to the neurosis, but not impossible to treat. The right understanding of the patient, why it is difficult to treat in psychosis than the neurosis, because in the neurosis the data from the patient, we don't get the actual data from the patient because he is not in the reality. So whatever the patient's narrating to you is not a reliable data, not at all. यो बोलेंगे मैं वहां गई थी, उसने फिर ऐसा किया, उसने वैसा बोला, वहां गई थी तो पुलिस आया, मतलब वहां पकड़ने आया, वो मुझसे बातें कर रहे थे, वो बातें मेरे बारे में, उसमें वो प्लान बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे फंसाना चाहते हैं. ये सब आप सुनेंगे, पर जब आप फैमिली मेंबर से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब, ये रियलिटी नहीं है, ये उसके डिल्यूजन्स है, ये फॉल्स परसेप्शन है, हेलुसिनेशन है. बराबर है कि नहीं? So we don't get the exact. We can do the mental state examination. We can know the content of delusion, but even we don't get most of the time the cause why this patient goes into this delusional disorder or psychosis, because we always see the cause effect relationship कि अगर एंजाइटी हुआ है, डिप्रेशन हुआ है या सिजोफ्रेनिया हुआ है तो इसका कॉज क्या है. तो एंजाइटी डिप्रेशन में ओसीडी में आपको डिमार्केशन इजीली मिल जाएगा क्योंकि पेशेंट रियलिटी से के टच में है, तो व्हाट एवर ही और शी इज टेलिंग इज द राइट, we can believe on that, but might be there is some exaggeration because of the anxiety, might be there is a low mood where the we can't get the enough information, we get the information but the little information, we have to collect the information from the family member, the close one, but the difficulty seen in the handling with the psychosis, right? So information, even the family member sometimes doesn't know what happened with this patient and why this goes into the delusional disorder or schizophrenia. And sometimes it is the patient becomes so aggressive, the family member gets so intensely disturbed, the patient को और family member को then patience नहीं रहता, so they easily choose the allopathic mode of treatment, right? And they continue their antipsychotic drugs, right? So there is a difference with the neurosis and psychosis. The both have the scope in homeopathy. Now according to the diagnostic criteria, American Association, Psychiatric Association, Statistical Manual, Diagnostic Criteria of Statistical Manual 4. Now it is 5th come. आपको अगर कोई रेफरेंस लेना है बुक का, क्लिनिकल कंडीशन का, कि एंजाइटी में क्या क्या आता है ना, मूड डिसऑर्डर में क्या आता है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या आता है, देन इन शॉर्ट, then this book, that is the DSM-4 book, is the useful for us. This is the DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. I think you can be easily visible. I will give the name. I will share the name over the WhatsApp. No problem if you require. Now the latest version is the DSM-5.
right? So I have the soft copy of DSM-5. I will share you, right? So if you want to understand more deeply the clinical condition or psychiatric condition, why it is important to know the exact clinical diagnosis, अगर वो physical हो या mental हो. First most important is the whatever we are treating, the physician, the consultant must know what is to be cured. Aphorism organ of medicine, what is to be cured. अरे उसमें क्योर क्या करना है, पैथोलॉजी क्या है, यही नहीं समझेगा तो माइजम कैसे समझेगा. अगर डिसीज डायग्नोसिस नहीं होगा तो पैथोलॉजी कितना डेप्थ में है, बराबर है कि नहीं, कौन से लेयर में ये डिसीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में, मेसोडर्म में, न्यूरो एक्टोडर्म में है, वो नहीं समझेगा. अगर ये नहीं समझेगा तो इसको मैनेज कैसे करना, ये नहीं समझेगा. अप्रोच कैसे लेना है, नहीं तो हर केस में, जैसे सोरी केस में, साइकोटिक सिफिलिटिक में हम एक ही अप्रोच लेंगे. सो हैंडलिंग एंजाइटी डिसऑर्डर इज क्वाइट different from handling the schizophrenia, right? Now most important, again important, when we diagnose any case properly, perfectly, we know what are the common symptoms present in this case. So we rule out that common symptoms and pick up the peculiar uncommon symptoms, so that our totality will be precise and perfect. But when we don't know the diagnosis, we don't know the underlying pathology, we don't know the organ affected or part or tissue affected, we will be puzzled and we'll take the symptoms which is not important or less important, or the symptom which is diagnostic symptom, which is useful for diagnosis. But our prescription or selection of remedy will be based on that diagnostic or common symptom. And if you prescribe such a remedy, then you get the partial, temporary, or no relief at all. In our initial days, in my initial days when I was graduate doing the BHMS, first year, second year, third year, I started giving the medicine to the patient. First time मैं जब सेकंड ईयर में था तब फर्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था टू माय नेबर, जो जूनियर था, जो बाजू के रूम में रहता था और मैं दूसरे रूम में रहता था, रेंटल, right? So by that was the good experience I got. And when we choose, if the students are there in this session, so I advise personally ki if you are passing the third year, then start prescribing to the small entity, कोराइजा, कफ, ये जो भी आपके आजू बाजू में जो पेशेंट होंगे जो आपके पास आ रहे हैं, तो उनका टोटलिटी लेने का कोशिश कीजिए, हिस्ट्री लेने का कोशिश कीजिए, शॉर्ट में सोचिए कौन सी मेडिसिन आई है और मिनिमम डोज में दीजिए. Try to analyze, try to finding the diagnostic point of view, not don't jump just कि ये ऐसा लग रहा है वैसे लग रहा है. Make it scientific, because when we prescribe in since this time period, our confidence will boost and that will helps in our practice. बराबर है, मतलब प्रैक्टिस में आप शुरू करेंगे, आप सोचोगे कि जब मैं इंटर्नशिप कंप्लीट करूंगा तब मैं मेडिसिन देना शुरू करूंगा, तो ऐसे नहीं. इफ यू हैव द नॉलेज, तो ऐसा होता था कि कभी कभी हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता, तो हम जैसे एक ब्रोंकियल अस्थमा का केस था, वेयर द पेशेंट हैविंग द ब्रीथलेसनेस विद देयर वाज अ व्हीजिंग, सुसु आवाज आ रहा था, व्हीजिंग है, रोंका है, क्रिपिटेशन है. उस समय नहीं समझता था, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा इज कम्स अंडर द मेडिसिन इन फाइनल ईयर और मैं तब थर्ड ईयर में था. तो ब्रोंकियल अस्थमा का केस आया और मैंने आर्सेनिक एल्बम दिया विथ द कॉन्फिडेंस दैट द पेशेंट डेफिनेटली गेट बेटर, because the modality is very characteristic that the breathlessness or cough with shortness of breath is aggravated by lying down. But when I prescribe and दूसरे दिन जब पेशेंट को पूछा, the patient stand still था, मतलब there was no
नो रिलीफ एट ऑल. सो मैंने जब ब्रोंकियल अस्थमा का मेडिसिन का बुक खोल के देखा एट दैट टाइम, सो आई हैव फाउंड दैट कि breathlessness in bronchial asthma, the symptoms are cough, breathlessness, rhonchi. The symptoms are aggravated mostly by lying down and at night. The change of weather, the cold, the damp, and the allergen. So if we prescribe the remedy on the basis of common symptom, that will not get the desirable result. So then I understood the importance of diagnosis and underlying pathology कि हमको diagnosis समझना कितना important है. नहीं तो हम superficial symptom जो है या फिर diagnostic symptoms है उस पे ही हम क्या करेंगे, medicine prescribe करेंगे, which is not the scientific way of prescribing the remedy, and definitely you will not get the result, right? So come to the psychiatric disorders, how it is important, in what way it is important. अब ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर में कितने कितने डिसीजेस आते हैं हम पहले देखेंगे, क्योंकि यू शुड अवेयर अबाउट इट कि साइकेट्री में इतना ही नहीं है कि एंजाइटी और डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया, देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन or classification of mental condition. The first important is the disorder, which is usually first diagnosed in the infancy, in childhood and in the adolescence. मतलब जो disorder जो बच्चों में होता है, that's why there is a separate entity, child psychiatry. और मैं जब ML धवले में था तो हमारा स्पेशल ओपीडी होता था चाइल्ड साइकेट्री. I was not that time much interested in the child psychiatry, but I'm interested in the adult psychiatry. तो ये child psychiatry में क्या आता है? Mostly child psychiatry में आता है mental retardation, MRCP, mental retardation, learning disorder, है ना? Learning disorder, motor skill disorder, communication disorder, attention deficit, ADHD जो बोलते हैं हम, attention deficit hyperactivity disorder. Again the tic disorder, or even there is a eating or feeding disorder. Eating or feeding disorder, you get or we get this such a kind of patient or child where they produce the troublesome to the mother or parents for feeding the meal, right? So it is not most prevalent and not much identified by the physicians in India, but in foreign this disorder is more prevalent, because recently I have taken the case which had an GRD case tha, or I was taken that case on the online. तो उनका जो बच्चा था, सो हैविंग, उन्होंने कहा कि इसको फीडिंग डिसऑर्डर है. मतलब आई वाज सरप्राइज कि ये यहाँ पे तो ऐसे केस मिलते नहीं फीडिंग डिसऑर्डर के. तो उसके लिए उसको काउंसलिंग करना पड़ रहा है स्पेशल. मतलब बच्चे ने खाना चाहिए, है ना? इट्स नॉट अ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों नहीं है ना, 2-3 साल 4 साल तो खाता नहीं है कुछ भी. तो उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग, स्पेशल सेशन एंड स्पेशल डॉक्टर उन्होंने अपॉइंट किया. सो दिस मोस्टली हैपेंड इन द फॉरेन. Still the India is away from it. It's a good thing, but I think there are the cases where the child is not willing to take the food, and we can diagnose it as the feeding disorder, right? But lack of knowledge होता है कि हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं. द सेकंड इज द डेलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक एंड कोग्निटिव डिसऑर्डर. Delirium. See, delirium, what we understand in homeopathy is slightly different from it. The delirium actually in psychiatry is the disorientation. There is loss of cognition. So delirium the causes for delirium is sometimes it is not organic because of the problem in the brain where their disorientation or consciousness is lost or altered. बराबर है कि नहीं? Consciousness is altered.
सो डेलीरियम में सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन में कॉज द डेलीरियम, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। अभी सब्सटेंस कैसे, अल्कोहल, कुछ ड्रग्स होते हैं, दैट सब्सटेंस रिलेटेड में कॉज द delirium condition, dementia condition. One is the substance intoxication and one is the substance withdrawal. For example, alcohol. Abuse of alcohol may cause the intoxication. The symptoms will be different. And the withdrawal, because I have done our dissertation on the alcoholism. So we have the special learning process for that, or special understanding. सो विड्रॉल मतलब कैसे है ना, कि जो हु आर इन द हैबिट ऑफ और पैथोलॉजिकली एडिक्टेड टू अल्कोहल, and when he away from it or not taking the desired dose of the alcohol, then the symptoms come in the form of disorientation, delirium state, incoherent speech, agitation, irritability, irrelevant talk, sleeplessness. So this is the alcohol withdrawal symptoms. So this is that this patient may present with the delirium, right? Now the substance related disorder. अभी substance जो जैसे कि drugs है, alcohol है, amphetamines है, cocaine है, right? This substance produce if the patient is addicted to this, then there is a substance related disorder, we can say. The another important class of disorder in the psychiatry is the psychotic disorder. I already explained psychotic disorder like a schizophrenia, schizoaffective disorder, or delusional disorder. But we need to understand only कि psychotic मतलब schizophrenia. आप इतना भी हमको समझ में आ गया तो it is sufficient to, because when the patient comes from the psychiatric doctor, psychiatrist, तो हम जब फाइल देखते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से क्लासिफिकेशन में है. Most of the time, instead of writing the name of the disorder, there is a version. बराबर है, there is a version or there is a code for each and every disorder, which is even present in the last of the DSM-4 code. तो ये psychiatrist क्या करते हैं, कोड लिखते हैं. इफ द सिजोफ्रेनिया है तो उसका जेंडर रिलेटेड और सेक्स रिलेटेड भी डिसऑर्डर रहते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो फाइल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं लिखते, या और कोई ऐसे डिसीज तो उसका कोड लिखते हैं. सो यू शुड नो कि अगर इन्हें लिखा नहीं तो हम तो समझेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये क्या लिखा है डॉक्टर ने, कोड लैंग्वेज, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है. सो इफ यू हैव, और यू कैन गूगल इट कि ये ऐसा है साइकेट्रिक, तो इसमें क्या आता है कर. तो साइकोटिक डिसऑर्डर, एवरी डिसीज हैज देयर ओन कोड्स, सब टाइटल भी होंगे तो उसके कोड अलग है. देन कम्स द मूड डिसऑर्डर. मूड डिसऑर्डर मींस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर and depressive disorder, single episode, recurrent episode. And another entity comes here is the bipolar disorder. आपने देखा होगा कोई केस कि जिसमें 2 फेज रहते हैं, मैनियक फेज रहता है, हाइपरमेनिया, हाइपोमेनिया. तो मैनियक फेज में पर्सन बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है, काम करेगा, सुबह ही उठेगा, कॉन्स्टेंटली उसको कुछ न काम चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, हाइपर एक्टिव, मैनियक फेज बोलते हैं इसको. दिस लास्ट फॉर फ्यू डेज टू मंथ एंड फॉलोड बाय द डिप्रेसिव फेज वेयर द पेशेंट लाइंग अलोन, aversion to society, aversion to family member, है ना, सब कनेक्शन टूट जाएंगे, सिर्फ काम पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जो जो इसमें इंटरेस्ट था वो सब चले जाएगा, तो डिप्रेसिव फेज बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड बायपोलर फेज, बायपोलर डिसऑर्डर. यहाँ पे अल्टरनेट स्टेज आते हैं, मैनियक स्टेज, हाइपरमैनियक, हाइपोमैनियक, मतलब मैनियक स्टेज प्लस डिप्रेसिव स्टेज. दिस इज कॉल्ड बायपोलर डिसऑर्डर, है ना. देन कम्स इज द एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना. एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें काफी एंटिटी आती है, जो हम देखते हैं ना कि पैनिक डिसऑर्डर, OCD, that is obsessive compulsive disorder, all this comes under this anxiety disorder. Panic, then phobia, specific phobia, किसी को claustrophobia, agoraphobia,
social phobia, all this comes under the anxiety disorder. Again, there is a PTSD in anxiety disorder, post traumatic stress disorder. आपने देखा होगा या पेशेंट भी आपने देखे ट्रीट किए हैं, पर डायग्नोसिस हम कभी कभी नहीं कर पाते. तो पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ भी जैसे कोविड, दिस इज द this having the severe impact on the emotional level. And the I everyone know ki after a covid the psychological cases and psychiatric cases are rise. बराबर है. The most of the people suffered with the OCD, anxiety disorder, phobia, like this. Even the depression because of the loss of job, loss of financial condition, finance burden. There is a financial burden, loss of relation, loss of the family member causes the stress. So post-traumatic stress disorder. This is again the common condition. Acute stress disorder and even the GAD, generalized anxiety disorder. बराबर है. जहाँ पे जनरलाइज मतलब everywhere in the every space of the life, in every area of the life, जॉब में भी, घर में भी, बाहर गए, अंदर रहे, किसी को कुछ बीमारी हुई तो एंजाइटी वहां पे आपको देखेंगे पेशेंट में. दैट इज कॉल्ड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. दिस पेशेंट इज आल्सो वेरी कॉमन. हाइपर एंशियस जो होते हैं ना, जैसे बोलते हैं पेशेंट की डॉक्टर साहब कि अभी ये बीमारी है, यहाँ पे जैसे एसिडिटी है हम बोलते हैं, या कोई डॉक्टर ने बोला कि एसिडिटी है, पर पेशेंट को लगता है कि नहीं नहीं ये हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम तो ना हो जाए, हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट अटैक तो ना आ जाए, तो फियर ऑफ हार्ट अटैक, फियर ऑफ डेथ डेवलप होगा, तो बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बार बार ईसीजी करेंगे, बार बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर को चेंज करेंगे, उनको पूछेंगे ये बीमारी है क्या, वो बीमारी है क्या. तो दिस इज कम्स एट anxiety plus this is a hypochondriac type of patient. This is the hypochondriac type of patient which comes under, there are another entity called as the somatoform disorder. Called as somatoform disorder. In somatoform disorder there is a somatization. मतलब psychic pressure physical body पे आ रहा है with the multiple pain symptoms in different system. Right? Is it I'm audible? Because this network is unstable. This message is coming here. Is it I'm audible? Yes. Yeah. So what is that? The somatoform disorder. This is also very interesting. And there are a lot of cases we have seen. Because we have seen these, the knowledge of this such a type of disorder is very essential. कि हमको ये पता ही होना चाहिए. काफी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि रिपोर्ट्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी डॉक्टर को दिखाया, ये भी डॉक्टर को, पेशेंट जब आते हैं डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ में हुई, ये भी दर्द हो रहा है, ये पेट में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं. राइट? देखा है ना आपने? और डॉक्टर साहब इतने डॉक्टर को दिखाया हमने, कुछ निकलता ही नहीं है. एवरी रिपोर्ट इज नॉर्मल. तो मुझे तो तकलीफ है. व्हाट इज दिस? This is the somatization disorder, somatoform disorder. This is somatization. Another form, there is a hypochondriasis. Another is the maybe anxiety disorder, depends on the manifestation expression. आपको उसका mental state examination करना पड़ेगा, history लेना पड़ेगा. Very important. क्योंकि ये कैसे ना परेशान पेशेंट होते हैं. अगर आप उसको अच्छे से समझे कि दिस इज द, वी आर डीलिंग विद द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, वी आर डीलिंग विद सोमैटाइजेशन. बराबर है. वी आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ hypochondriasis, that is hypochondriacal patient, hypochondriacal disorder. Even there is a patient who having the body dysmorphic condition. ऐसे भी पेशेंट आपने देखे होंगे जहां पे उसको लगता है डॉक्टर साहब की बॉडी के हिसाब से मेरा मुंह छोटा है. एक पेशेंट है ऐसे, उसको अपने बीवी जो है उसको लगता है कि बीवी में कुछ तो भी कमी है, बॉडी ऐसे मोटी है पर चेहरा बहुत छोटा है, तो कंपेयर करते रहता है सबके.
वो लड़की को देखेगा, वो लेडीज को देखेगा, फिर अपने बीवी से कंपेयर करेगा, अपने चेहरे से कंपेयर करेगा, अपने लिप्स अपने चिक से कंपेयर करेगा, अरे ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइज से डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बहुत इंटरेस्टिंग है। पर हम अगर इसमें ये लेंगे कि डिल्यूजन की बात, बॉडी पार्ट्स ऐसा हो गया, बॉडी पार्ट्स वैसा, सो आई थिंक इट इज द कॉमन सिम्टम्स फॉर इट। सो वी हैव टू चूज द अदर peculiar characteristic symptoms. बराबर है कि नहीं? So it is a somatoform disorder, right? Then there is a factitious disorder. Factitious disorder बोलता है ना फेनिंग, हमारे पास रूब्रिक है फेनिंग। फेनिंग सिक मतलब नाटक करने वाला, सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने वाला है, दिखावा करने वाला, तो फेनिंग सिक है ना, बच्चों में भी रहता है, बड़ों में भी रहता है। समटाइम इट इज द हिस्टेरिकल एक्सप्रेशन, factitious disorder. Then dissociative, this is very dissociative, it is like a components come under is the dissociation, means alteration of emotions, of perception, of cognition, of memory. Dissociative personality, अपने हमने मूवी भी देखा है, पर्सनालिटी डिसोसिएट हो जाती है, वो जो है पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी उभर के आती है, एक अलग पर्सनालिटी उभर के आती है, दैट इज द डिसोसिएटिव, which is detached from the reality, right? Then sexual and gender identity disorder, sexual disorder, it is sexual arousal disorder भी आ सकता है, erectile disorder भी आ सकता है इसमें, sexual dysfunction भी आता है इसमें, gender identity भी प्रॉब्लम, मतलब अगर gender identity, there is a confusion of identity, gender एक रूब्रिक है, confusion of identity, right? So there could be a gender identity disorder. Another is the eating disorder, खाने का। हमने कुछ देखा होगा, काफी पेशेंट देखे होंगे कि जिनको देयर इज एवर्जन टू टेकिंग फूड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गेटिंग increase weight or gaining weight. Patient, oh, it's a female disorder mostly, that lady or girls is very lean thin, but in spite of it she could not or has aversion to food. उसके पेरेंट्स आपको कंप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब ये खाती ही नहीं है, बिकॉज ही हैज देयर ओन बिलीफ और थॉट्स, फिक्स थॉट्स और फियर कि मैं मोटी हो जाऊंगी कर। So this is the eating disorder that is called as the anorexia nervosa. Anorexia nervosa. And another disorder is there where patient खाते ही रहता है पर उसकी भूख खत्म नहीं होती. That is called bulimia. There is rubric in our repertory, bulimia. The remedy I think is the lycopodium. मतलब भूख खत्म ही नहीं होती. सुना होगा ना, कोई रहता है 10 रोटी 15 रोटी, सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ जो सेटिस्फेक्शन होता है वो ही नहीं आता है. So overeating. So there is a condition called as the bulimia. With this there is a sleep disorder. Pattern of sleep change हो जाता है ना, delayed sleep रहता है, insomnia हम बोलेंगे. So sleep disorder is also. Then impulse control disorder. There is a impulse control disorder. Here there are the patient having the impulses which is out of control. तो antisocial personality भी इसमें, personality नहीं है, the impulses, the emotions, the patient can't able to control their emotions like anger. तो जब भी triggering factor आता है और गुस्सा आता है तो फड़ाक के मार देगा, क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, तो अपने इम्पल्स और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, राइट? द अनदर
type of disorder is the personality disorder. There are different paranoia, catatonic personality, even the paranoia, schizophrenia, catatonic schizophrenia. That's such a type of personality. This is the different type of disorder, the personality disorder. So these are the clinical condition which comes under the psychiatric disorder. But we have to see we have to understand that condition which is very common in our practice. है ना, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या चाइल्ड साइकेट्री, ये पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए. बट वी आर गॉन थ्रू द important topic like anxiety disorder, mood disorder in the depression, anxiety में panic disorder, obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder, mood में depressive, then somatoform देखेंगे, hypochondriasis देखेंगे, convergent disorder देखेंगे, pain disorder देखेंगे, sexual dysfunction का भी हम केस देख सकते हैं, factitious disorder का भी देख सकते हैं, eating disorder, sleep disorder, impulse control disorder. बराबर है कि? So we can see the one by one the each and every conditions, but mostly a child psychiatry छोड़ के, so that we can aware and learn all these things. Right? So we can aware about all these things. Who is not? Raj Kanya. Sorry, sir. Ah. Okay, so I think this is the concise अंडरस्टैंडिंग बोलो, या आपको ये समझ गया होगा कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी कितना ब्रॉड है. इट इज नॉट जस्ट एंजाइटी और डिप्रेशन. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द diagnostic point of view of each and every disorder, we have to understand the mental state examination. कि हम पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, so that we have come to the conclusion कि this patient comes in this category, ये category और ये category. सिर्फ मैं पेशेंट दिखाऊंगा, बोलूंगा ये केस है, ये वो केस है, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल और हमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. राइट? सो आई हैव go through the important part of the psychiatry, that is the mental status examination. You should write down the points so that you can understand while examining such patient. बराबर है कि? So what is the mental state? It is an assessment of the patient behavior and cognitive function. And as a homeopath, see, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एज ए साइकेट्रिस्ट, जो एलोपैथिक साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, उनके लिए एक ही काम होता है कि उनको सिर्फ डायग्नोसिस करना पड़ता है प्रॉपरली कि ये कौन से इसमें है. देयर आर मल्टी एक्सियल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी होता है, पर अभी ये DSM 5 में नहीं है वो. तो उनको क्या करता है, मोस्टली उनको क्या करना पड़ता है कि डायग्नोसिस करना पड़ता है, एंड द रेमेडी इज रेडी. एंटीसाइकोटिक है, एंटी एंजाइटी है, एंटी डिप्रेसिव है. बट एज अ होम्योपैथ वी हैव टू डू द मल्टी लेवल टास्क. हमको मल्टी लेवल टास्क करना, वर्क करना पड़ता है. कैसे? पहले तो डायग्नोसिस करना पड़ता है हमको, वेदर इट इज अ फिजिकल और मेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो डायग्नोस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. देन हमको पर्सन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. फिर माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. फिर ये सब अंडरस्टैंड होने के बाद फिर टोटलिटी बनेगी. तो हमारा काम काफी बड़ा है. राइट? सो एंड whatever the things I am now talking about or teaching to you, most of the things we are already practicing. Try to understand this.
वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग। हम क्या एमएससी मतलब क्या है? वी आर स्टडिंग द पेशेंट बिहेवियर एंड देयर कोग्निटिव फंक्शन, देयर अपीयरेंस, कैसे बात करते हैं, कैसे इमोशन है, मेमोरी कैसी है। हम तो पेशेंट में देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं ना पेशेंट में कि कैसे कपड़े पहन के आया, हेयर स्टाइल कैसे है, बात करने का तरीका कैसे है, स्पीच का टोन कैसे है, लाउड है, स्लो है। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस, बराबर है, दिस इज वेरी इजी फॉर अस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी फाइन वे, राइट? So mental state examination, it is a structured assessment of the patient behavior and the cognitive function. It includes the patient appearance. It includes the description of patient appearance कि कैसे दिखता है, appearance, their behavior, level of consciousness, attentiveness, the alert है नहीं है, सुन रहा है नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट आता है स्टूपरस कंडीशन में आता है, ड्रॉजी स्टेट में आता है, कुछ केसेस होते हैं, है ना, काफी डॉक्टर्स आईसीयू की केसेस ट्रीट करते हैं, द कंडीशंस विच आर इन कोमा, सेमी कोमेटोस कंडीशन, स्टूपरस कंडीशन। So we are observing the level of consciousness, studying the level of consciousness, level of attentiveness, how much the patient is attentive to the question, attentive to the environment, motor and speech activity कैसे है कि नहीं, मोटर मोटर एक्टिविटी कैसे है, मोटर मूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, कि साइकोमोटर रिटार्डेशन है। बिकॉज इट देर आर द कंडीशन जहाँ पे मोटर एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, कई कंडीशन है मोटर एक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है, जैसे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया में बढ़ सकती है, मैनियक पेशेंट में बढ़ सकती है, पर किस में कम होती है मोटर एक्टिविटी, जैसे डिप्रेसिव पेशेंट में, स्टूपरस पेशेंट में। इसको हम बोलेंगे साइकोमोटर रिटार्डेशन। फिर हम देखेंगे कि स्पीच एक्टिविटी कैसे है, मूड कैसे है, बराबर है कि नहीं, इमोशंस, तो मूड एंड अफेक्ट, उसके थॉट कैसे है, क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसमें परसेप्शन कैसा है, हाउ द एटीट्यूड कैसा है, उसका इंसाइट कैसा है, एंड देन हायर cognitive abilities, how to understand the things, right? अदर cognitive function जैसे मेमोरी कैसा है, language, alertness, abstract reasoning, these are relevant at the clinical point of view कि हम psychiatric diagnosis in order to help for in the psychiatric diagnosis, right? Now for the इसको हम simple बनाते हैं, so there is a mnemonic called as the aseptic. This mnemonic can be used to remember the components of mental status examination, right? अभी इसको हमको समझने के लिए हम मोस्टली हम इसको फॉलो करते हैं, कुछ चीजें हम पहले से ही हमको पता है, बराबर है, पर हम साइकेट्रिक एंगल से इसको देख रहे हैं। सो असेप्टिक मतलब ASEPTIC हमको ध्यान में रखना है, असेप्टिक, दैट मींस A फॉर अपीयरेंस, S फॉर स्पीच, देन इमोशन, परसेप्शन, थॉट कंटेंट, इंसाइट एंड कोग्निशन। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी ये साइकेट्रिक रहो कि नॉन साइकेट्रिक रहो, आप आईसीयू में पेशेंट को चेक कर रहे हैं, आप ओपीडी में पेशेंट को चेक कर रहे हैं, ये तब भी काम में आएगा, because this is the state of wakefulness of the patient, and this depends on the psychological condition and even the pathology in the brain, that means pathology in the brainstem and cerebral cortex. You can see the brainstem, the injury to the brainstem, sometimes there is a hematoma which cause pressure over the brainstem. There was a case of ज्यादा नहीं 18 साल की लड़की थी एंड सडनली वो वोमिटिंग, लूज मोशन हुए और अनकॉन्शियस हो गई, तो एमआरआई ब्रेन में पता चला कि उसको हेमाटोमा डेवलप हो गया, ब्लीडिंग डेवलप हो गया,
और उसका प्रेशर से जो ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, वो हर्निएशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो दैट गर्ल गोज इनटू द कोमा, बराबर, पर मैनेज नहीं हो पाई होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिकॉज द पैथोलॉजी इज सो ग्रॉस और उसका कॉज हमको मिला नहीं। सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, there could be a hemorrhage or pathological changes which alter the conscious level of consciousness. It may produce the unconsciousness or the coma, right? Is the patient, we have to see क्या करना है हमको, ऑब्जर्व क्या करना है, whether the patient is alert, whether the patient is vigilant, whether the patient is semi drowsy, sleepy, drowsy in the sleepy lethargic condition, stuporous, asleep, comatose, confused or fluctuating. This thing मतलब अवेक भी है, स्लीपी भी हो रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे स्टिमुलाई देने के बाद जग जा रहा है, फिर से वो स्टूपरस कंडीशन में आ रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। जो नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम नॉर्मल है, अभी हम बात कर रहे हैं, कोई बात समझ रहा है हमको क्या हो रहा है सराउंडिंग में, सो नॉर्मल है। समटाइम्स देयर इज अ क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, देयर इज अ डिसओरिएंटेशन, देयर इज इंटॉक्सिकेशन लाइक स्टेट। तो डेलीरियम में मोस्टली ऐसा होता है कि क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, तो मोस्टली वी कैन सी इन द डेलीरियम। डेलीरियम एक्यूट और सब एक्यूट होता है, बराबर है कि नहीं। डेलीरियम हम देखेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, साइकेट्रिक कंडीशन में भी होता है, जनरल मेडिकल कंडीशन में भी होता है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से हो सकता है, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन से होता है, अल्कोहल विड्रॉल से डेलीरियम स्टेट में जा सकता है, हाइपोनाइट्रेमिया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी डेलीरियम स्टेट में जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं। देन ऑब्चुंडेशन, दिस इज द साइकेट्रिक टर्म, मतलब पेशेंट रिक्वायर द मॉडरेट स्टिमुलेशन इन ऑर्डर टू अराउज। अभी ये स्टूपर इससे ऊपर का है, जहां पे स्टिमुलेशन काफी चाहिए पेशेंट, और अराउज भी होगा तो कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए होगा, और फिर से स्टूपर स्टेट में चले जाएगा। तो लेवल ऑफ अराउजल और स्टिमुलेशन कितना चाहिए, तो ऑब्टुंडेशन में माइल्ड टू मॉडरेट स्टिमुलेशन की रिक्वायर पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अराउज, स्टूपरस में सीवियर स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड कोमा all know is the unarousable unresponsiveness, there is no response at all, but sometimes we take in homeopathic practice कि जो स्टूपरस है, डीप स्टूपरस है, तो हम उसको कोमा भी उसको कंसीडर करते हैं एज अ रूब्रिक, बराबर। देयर इज अ रूब्रिक, lot of rubrics related to unconsciousness and coma. We have to study that so that we can able to understand how to handle it, especially we can see these cases in the ICU, right? तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमको पहले देखना है, फिर अपीयरेंस देखना है, अपीयरेंस पेशेंट में। अभी अपीयर कैसे, हम दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट बैठा कैसा है, उठ कैसे रहा है, उसका गेट कैसा है। अभी उसमें कुछ गेट में कुछ ये है क्या, टिक्स है क्या, उसको कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है क्या मसल में, ट्रीमर्स है क्या, विच इज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स हो रहे हैं क्या पेशेंट में, ऐसे समटाइम्स देयर इज अ इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वन हैंड, वन लेग्स और अदर बॉडी पार्ट्स। अभी उसका पोस्चर कैसा है, बैठे हैं, तो ये हम होम्योपैथी में भी देखते हैं। हमको इसमें ये साइकेट्रिक डायग्नोसिस में हमको देखना है। तो आधा काम तो हमने पहले ही हमको पता है, बराबर है। सो वी हैव टू नोट द पोस्चर, हाउ द पेशेंट इज सिटिंग, देयर क्लॉथ, हाउ दे ड्रेस अप, वेल क्लॉथ, वेल ड्रेस है, पार्शियल ड्रेस है, दे आर एक्सपोजिंग, ट्राई टू अनड्रेसिंग, और वो साफ सुथरे ड्रेस है, क्लीन है कि डर्टी है, अनटाइडी है। That gives the insight into the whether the patient is aware about his or her condition, his or her condition. So self care जो होता है वो है कि नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में तो आपको सब नीट एंड क्लीन दिखेगा,
समटाइम्स द डिप्रेसिव विच इज सीवियर डिप्रेशन में है, तो हो सकता है कि क्लॉथ और क्लीनलीनेस थोड़ा कम हो, हेयर्स बराबर ना हो। पर सिजोफ्रेनिया है, मैनिक डिसऑर्डर है, तो सब अस्त व्यस्त दिखेगा। बराबर है कि समटाइम्स द पेशेंट इज इन द डेलीरियम, है ना, आईसीयू में पेशेंट है, डिलीरियम है, तो माइट बी द क्लॉथ, द पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द क्लॉथ। बराबर है कि नहीं, तो वो हमको देखें। हम बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब आई कांटेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द इनिशियल केस टेकिंग कि पेशेंट का आई कांटेक्ट है कि नहीं, वेदर ही इज और शी इज लुकिंग डाउनवर्ड्स or there is a intermittent eye contact or looking towards the wall. Mostly the depressive patient जो होता है और जिसमें guilt होता है, तो they having the less eye contact or there is no eye contact at all. सिजोफ्रेनिया में है तो इंटरमिटेंट, ऐसे कहीं भी देखेगा कुछ भी बड़बड़ करेगा, तो वो आंख से आंख नहीं में, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गिल्ट बट बिकॉज ऑफ द माइंड इज नॉट एट दिस अवेयर, है ना, वो साइकोटिक डिसऑर्डर है ना, तो वो अपने ही धुन में रहेगा, इज इन देयर ओन थॉट प्रोसेस। बराबर है कि नहीं। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब कैसे है कि पेशेंट को हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ओपनली एक्सप्रेसिव है, कम्युनिकेटिव है, कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं। सो उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर, बराबर है कि नहीं। सस्पिशियस है कि यहाँ हम मुझे लाया है तो कैसा है, कुछ करेंगे तो नहीं, है ना, कुछ रहता है वो ऑपरेशन करने वाले, कुछ मारने वाले, कुछ सिजोफ्रेनिक पेशेंट रहता है तो उसमें उसमें रहता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, तो सस्पिशियसनेस मोर कि ये कुछ करने वाले, अगर फैमिली मेंबर ने मुझे इनके पास लाया है तो ये कुछ मेरी हानि करने वाले, हार्म करने वाले। समटाइम्स द पेशेंट इज एपेथेटिक इंडिफरेंट, बराबर है कि एपेथेटिक मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दिखेगा, डिप्रेशन में भी दिखेगा, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में दिखेंगे। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एसेंशियल, अंडरस्टैंड। ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, अगर साइकेट्रिक नहीं आए तो दूसरे डिसऑर्डर से आए तो हमको ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वहां है बिकॉज व्हाट एवर द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट और ऑब्जर्वेशन इज बाय डॉक्टर्स और अटेंडेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट एवर वी ऑब्जर्विंग, बिकॉज इट इज द रिलायबल, ये फेक नहीं है, इसमें चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इज द जेस्चर्स देखेंगे या बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, द वे द पेशेंट इज सिटिंग, द वे द पेशेंट दे आर कीपिंग देयर हैंड्स, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो इससे हमको टीथ कैसा है, फोरहेड कैसा है, तो ये बॉडी लैंग्वेज कैसे बैठा है। सो दिस बॉडी लैंग्वेज नेवर lie, these things will never lie, बट कंटेंट जो पेशेंट बोलता है इट कुड बी अ मैनिपुलेटिव। सो द मोर रिलायबल थिंग इज द और ऑब्जर्वेशन, more important than what the patient, the way he talk than the content of talk. What is more important, the way he or she is talking than the content of talk. Content means कि क्या बात कर रही है, वो बोल रही है कि नहीं बस सब ठीक है, या वो बोल रही है कि नहीं एकदम एकदम खुश है, कोई परेशानी नहीं है, पर उसके चेहरे पर सैडनेस दिख रहा है, उसके आंख में आंसू दिख रहा है। तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन दैट समथिंग इज देयर which we have to evaluate by our skill, proper skill. अभी speech कैसा है patient, there are a lot of words are there but I'm focusing on some important words. स्पीच कैसा है, अभी स्पीच को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम बोलते हैं ना स्पीच, हम ऐसे भी केस में जो साइकेट्रिक नहीं हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्पीच एकदम हरिड एंड हास्टी है, स्पीच हास्टी मोर इंपॉर्टेंट है, स्पीच वेरी स्लो। तो क्वांटिटी ऑफ स्पीच पे क्या आएगा, वेदर इट इज टॉकेटिव, स्पॉन्टेनियस, वेदर द स्पीच इज एक्सपांसिव और देयर इज अ पोवर्टी ऑफ स्पीच। पोवर्टी ऑफ स्पीच मींस फ्यू वर्ड्स यूज करेगा, जब हम इसको बोलेंगे अगर साइकेट्रिक नहीं है तो रिजर्व है या इंट्रोवर्टेड, देयर इज अ पोवर्टी ऑफ स्पीच। तो पोवर्टी ऑफ स्पीच हमको कहाँ मिलेगा, एज फार एज द साइकेट्रिक इलनेस इज कंसर्न,
जैसे डिप्रेशन में बोलेंगे, because they are not willing to talk, they are in the sad and depressive phase. रेट मतलब फास्ट है कि स्लो है, रेट ऑफ स्पीच, फास्ट स्पीच है कि स्लो है, मतलब हरीड है कि नहीं है, प्रेशर्ड स्पीच, डोमिनेटिंग जो हम स्पीच बोलेंगे, या प्रेशर्ड स्पीच, वॉल्यूम कैसा है, लाउड है कि सॉफ्ट टोन में है, या वीक है या स्ट्रॉन्ग। मैनियक, अगर मैनियक फेज में आ गया सिजोफ्रेनिया तो लाउड टॉक भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग टॉक रहेगा। मोनोटोनस टॉक किसका रहेगा, डिप्रेसिव पेशेंट में मोनोटोनस टॉक रहेगा। एंग्जियस पेशेंट में हो सकता है सॉफ्ट टॉक रहेगा, सॉफ्ट। फ्लुएंसी कैसे रहेगा, स्लर्ड रहेगा, क्लियर रहेगा। देन रिस्पॉन्स कैसे है, जब हम पूछेंगे कुछ तो इजीली, मतलब रिस्पॉन्स क्विक है या एकदम स्लो है, तो उसका कोग्निटिव एबिलिटी भी उसमें समझेगा कि इसको समझ रहा है कि नहीं करके। तो स्पीच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सन साइकेट्रिक द इलनेसेस। इमोशन है ना, हम इमोशंस ऐसे भी लेते हैं, बट यहाँ पे इमोशंस कैसे है कि मूड एंड अफेक्ट, मूड एंड अफेक्ट, इट इज classified into the mood affect emotion। मतलब मूड मतलब कैसे कि अभी मेरा सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है, हम जब पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, whether he is happy, whether it is sad, whether he is in the exaggerated mood और मूड एंशियस है ना, तो मूड कैसा रहेगा, हाउ इज योर मूड बोलेंगे, तो इट इज अ प्रेजेंट फिनोमिना। In contrast, the affect is what you objectively observe. Affect मतलब affective state are the longer lasting state. Affective state are the longer lasting state, that is anxious state में, anxiety state में या depressive state में, बराबर है। तो prolonged state जो होगा वो रहेगा affect, और जो अभी जो बदलेगा with the stimuli is the mood. So emotion again, अभी ये हमको देखना है कि जो डिप्रेसिव है, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव, दैट इज द अफेक्ट, काढू नको पैसे थांब. इसका मूड हमको इवेल्युएट करना है कि कभी कभी डिप्रेसिव कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं। अगर डिप्रेसिव पेशेंट है तो उसका टॉक या एक्सप्रेशन वो सैड होना चाहिए, उसका टोन लो होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, पर अगर वो हंस के बात कर रही है या थोड़ा स्माइल दे रही है या उसको हैप्पी फील हो रहा है उसको एट दैट मोमेंट, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, मतलब appropriateness of the patient affect to the current situation, उसका अफेक्ट और मूड में कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं। मतलब इन और जनरल अंडरस्टैंडिंग कि वो जो बोल रही है, मतलब उसके हाव भाव और बोलना, उसमें कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए। हम ऐसे भी देखते हैं ना कि लेडी बोलती है कि डॉक्टर साहब हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर बच्चे भी बीमार है, ये है वो है, पर वो हंस के बात कर रही है, उसके इसमें आपको वो सैडनेस, वो ग्रीफ, वो इंटेंसिटी नहीं दिखती है। तो इवन यू आर, आप ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसा है, ये जो बोल रही है पर उसका जो मूड है वो ये नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सो देयर इज अ डिसमैच मोस्ट, मतलब समटाइम्स, बराबर है कि नहीं। समटाइम्स ऐसे होता है कि डॉक्टर साहब सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है, रिलेशन भी है अच्छे है, इन लॉ से भी अच्छा है, पर उसमें जब अच्छा बोल रही है पर उसके आंख में आपको टीयर्स दिख रहे हैं, उसका जो मूड दिख रहा है वो सैड दिख रहा है, लो दिख रहा है, उसमें टोन लो है। अरे सब अच्छा है तो खुशी होना चाहिए ना, वाइल टॉकिंग सब अच्छा है, कंटेंटेड हो, कुछ नहीं है, सब ठीक है। सो देयर इज अ नॉट अ मैचिंग। तो हमको इसको बाय ऑब्जर्वेशन इन इन और जनरल होम्योपैथिक प्रैक्टिस में भी हमको इसको काय ऑब्जर्व रे हमको कशाला पाहिजे करना है, सो दैट मला नाही माहिती. चल रायटिंग स्टार्ट कर. अश्विनी हुलके, जस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो मूड ये समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट, मूड एंड अफेक्ट, दिस इज द इमोशन अंडरस्टैंड।
फिर परसेप्शन, दिस इज how the patient perceiving the surrounding, how the patient perceive or understanding the stimuli. Because if there is a altered perception, this altered perception will represent in the form of hallucination and illusion. Hallucination and illusion. Now, what is the illusion? In the psychiatric term, the illusion are misperception of actual stimuli. And illusion is the misperception of the actual stimuli and are either a misinterpretation, error in perception. There is a perception is there. There may be visual perception, auditory perception. मतलब परसेप्शन कैसे है कि दो लोगों को बात कर रहा है, इल्यूजन कैसा है कि बात कर रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग, मतलब वो है, एग्जिस्ट है, बात कर रहा है, बट ही इज थिंकिंग, दैट पेशेंट इज थिंकिंग दे आर टॉकिंग अबाउट मी, जो मेरे बारे में प्लान बना रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसे दे आर टॉकिंग, दिस पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट मी, विच इज नॉट द एक्चुअल थिंग. कुछ उसको आवाज सुनाई दे रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन, जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मिस इंटरप्रेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसे रस्सी है या कुछ है, उसको वो कोई अलग चीज बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे सांप है या स्नेक है, तो ऑब्जेक्ट को मिस इंटरप्रेट करेंगे. सो दिस इज द अल्टरनेशन इन द परसेप्शन. दिस इज प्योरली साइकेट्रिक कंडीशन. दिस इज नॉट सीन इन द एंजाइटी, और इसमें नहीं दिखेगा हमको, ये साइकोटिक डिसऑर्डर में मिलेगा hallucination. See, another is the illusions are non-pathological. Most individual can point to time when they had misperception or fleeting perception. Sometimes this illusions is time being. May stress or certain acute condition may cause certain illusion. Another condition is the hallucination, where there is an absence of sensory stimuli in any of the five senses, whether it is auditory, visual, gustatory, olfactory or tactile. अभी हेलुसिनेशन में जो एग्जिस्ट ही नहीं है उसको उसमें समझ रहा है, जैसे ऑडिटरी बोलो या विजुअल हेलुसिनेशन बोलो. द अब्सेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, कुछ भी नहीं है, कोई स्टिमुलेशन नहीं. जैसे इल्यूजन में क्या होता है कि खड़े हैं, कुछ कोई बात कर रहे हैं, कुछ चीज है, पर उसको मिस इंटरप्रेट करनी है. यहाँ पे अब्सेंस ऑफ सेंसरी परसेप्शन उस चीज का है जहां जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं है. बराबर है. So most commonly are psychiatric this hallucination, auditory hallucination and visual hallucination. इसमें ये पेशेंट मोस्टली ये करता है कि उसको ऐसे लग रहा है कि घर के बाहर कोई लोग है जो उसको बुला रहे हैं, भगवान है जो मेरे से ये काम करवाना चाहते हैं, वो काम करवाना चाहते हैं, भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं ऐसा करूं वैसे करूं, है ना. देयर कुड बी अ हैलुसिनेशन कि बा कुछ हुआ है और पुलिस मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मैंने कुछ क्राइम किया है, मेरे से कुछ गलती हो गई है. बराबर है. सो देर आर द सम seen that visual hallucination you can see in the patient. Such a kind of patient mostly comes under the psychotic disorder, right? अभी content of thought कैसा है? It is mostly a delusion. Delusion मतलब false belief और fixed thought, है ना. थॉट मतलब फॉल्स बिलीफ, इन स्पाइट ऑफ आप अगर उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है. जैसे डिलूजन परसिक्यूटेड हम लेते हैं होम्योपैथी में, डिलूजन टॉर्मेंटेड, डिलूजन डेजर्टेड या डिलूजन फोरसेकन, उसको लग रहा है कि उसका बिलीफ है, बट द थिंग इज नॉट लाइक दैट. इन स्पाइट ऑफ यू एक्सप्लेन द थिंग्स कि देखो ऐसा है ही नहीं, they will not convince. So that's why it comes under the delusion.
This is a disorder. This is the pathological thought condition. Delusion are the pathological thought. That's why the delusion comes under the psychosyphilitic or syphilitic. It is not psychosis. Some people come that delusion under the psycho. Delusions are the false belief where there is a in spite of आप करेंगे कुछ भी आप समझाने की कोशिश करेंगे पर समझेगा. So even if we are taking the delusion in different way in homeopathic practice, ki delusion of persecution, so it comes under the psychosyphilitic or syphilitic because it is the distortion of thought. बराबर है. The ideas of reference thought and broadcasting, this is the different ego syndrome, suicidal thoughts वगैरह जिसमें आते हैं, this is comes under this category. Delusion कैसे? False belief, these are unshakable belief that are held despite even against it. People may have irritable grandiose delusion. अभी cognition, cognitive process or cognitive state. How we understand the cognition कैसा है patient का, in order to when we ask the patient cognitive function कैसा है, जिसमें memory आएगा, intellectual capacity आएगा, कि उसको पूछिए आपकी कि आप कहाँ पे आए. कॉग्निशन में ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन ये भी आएगा. कॉग्निशन में ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन. तो आप पूछिए आज का डेट क्या है, आप कौन से लोकेशन में हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, आपका नाम क्या है. दिस ऑल थिंग्स डिफाइन द कॉग्निटिव प्रोसेस इन द पेशेंट. बराबर है. This can give the clinician a very rough sense of person overall cognition, but is only a start. This is important if you are concerned about the delirium and confusional state. Then the important point is while doing the MS mental state examination is the insight. अभी insight for what? हम जनरली पूछते हैं पेशेंट को ना कि आपको अपने बीमारी के बारे में क्या लगता है. So this is the insightful question. कि हम क्या पूछ रहे हैं कि how the patient perceive his or her disease condition, his condition. तो मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है कि whether the patient is aware about his condition or not. तो अगर एंशियस पेशेंट है, रहते हैं ना एंशियस हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिनको है, सोमेटाइजेशन जिनको है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, या डिप्रेसिव पेशेंट है, डिप्रेसिव पेशेंट, तो इनका इनसाइड हमको देखना है कि बाहर के लोगों के बारे में इनका क्या राय है और अपने बीमारी के बारे में क्या राय है. Might be the patient having the good insight or poor insight or partial insight, or there is a no insight. बराबर है कि नहीं. तो overall a good intellectual and emotional understanding of their symptoms or different patient is actually aware about the symptom or illness. This insight is very important about the illness because मैनेजमेंट और काउंसलिंग हम जब करते हैं, जैसे डिप्रेसिव पेशेंट है और उसको इंसाइट नहीं है कि उसमें ये डिप्रेशन है और उसके वजह से क्या हो रहा है, उसको सुसाइडल थॉट है पर फैमिली का क्या होने वाला है क्या नहीं, पर ये अगर पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर साहब मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, आप मुझे मदद कीजिए, आप मुझे मदद कीजिए, देन यू गेट द कि पेशेंट हैविंग द गुड इंसाइट. और हम केस वीडियो थ्रू देखेंगे कि पेशेंट अगर बोल रहा है कि आई हैव टू डाई, मुझे जीना ही नहीं है, आप बोलेंगे नहीं बच्चे है फैमिली है वो क्या करेंगे, है कि नहीं, आप इससे बाहर आ सकते हैं, फिर नहीं है ना. सो देयर कुड बी अ पुअर इनसाइट, देयर कुड बी अ फेयर इनसाइट और गुड इनसाइट. ऐसे इसमें कि जजमेंट भी होता है, गुड इनसाइट एंड जजमेंट, राइट. these both are combined. So these factors are there where we get assess, and when we understand these points we can easily understand the psychiatric disease condition. This is called mental state examination, like our physical examination. हम जैसे जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं,
RS देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि abnormal साउंड क्या है, क्रिपिटेशन है क्या, रेल्स है क्या, है ना, हम देखते हैं ना, एयर एंट्री बराबर है कि नहीं, दोनों तीनों जोन में बराबर, अपर जोन लोअर जोन में एयर एंट्री बराबर है कि नहीं। तो ये सब एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम एक फिजिकल डायग्नोसिस पे आते हैं। और अगर साइकेट्रिक डायग्नोसिस करता है तो ये करना है तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है one case, so that you can understand the immediately how you do the mental status examination. और कुछ तकलीफ है आपको, बीपी शुगर थायराइड या और कुछ? थायराइड नहीं है, हाँ। थायराइड से This is the case I am recorded and having the psychiatric illness. This case comes to me with the psoriasis. उसके पैर में बहुत बड़ा पैच है psoriasis का, ये psoriasis के लिए आई है। शी अवेयर कि क्या है, फैमिली अवेयर अबाउट इट। तो पेशेंट का स्टेट देखो, कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट हैव पुअर इनसाइट अबाउट देयर इलनेस, और पेशेंट को उससे बाहर निकलना नहीं रहता, उसी स्टेट में उसको रहना रहता है। सो लीड्स टू लोदिंग ऑफ लाइफ एंड लीड्स टू सुसाइडल थॉट, बराबर है कि नहीं। एंड द साइकेट्रिक इलनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमको दिख रहा है पेशेंट में कि पेशेंट हैविंग द सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल प्लानिंग, सुसाइडल आइडिएशन, वो प्लान कर रही है, तो वी हैव टू अवेयर द फैमिली मेंबर। इसमें ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, so that we can avoid the consequences. Now try to do the MSc, mental state examination, कि इसका appearance कैसा है, attitude कैसा है, speech कैसा है, मूड कैसा है, अफेक्ट कैसा है, थॉट कंटेंट क्या है, कोग्निटिव लेवल क्या है, राइट। आर्थराइटिस और बीपी की टेबलेट लेती हूँ, और थोड़ा है पर अभी दवा नहीं शुरू की। अच्छा, विदाउट मेडिसिन ही चल रहा है। हाँ, डॉक्टर को दिखाए थे, बोले डॉक्टर ने बोला नहीं मेडिसिन लेना, कि आपने डिसाइड किया? नहीं, में मैसेज मैसेज बताए खाने के बाद इतना, बोले अभी 3 महीना और टेस्ट करके देखो, फिर दवा दे। देखेंगे। मतलब बीपी है और घुटने की तकलीफ है, उम्र के हिसाब से जो होता है ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। मुझे हस्बैंड मरने के 6 महीना बाद बीपी आया, अभी बीपी नहीं। मैं डाइट अच्छा लेती, ज्यादा तला नहीं खाती। क्या हो गया था उनको? ब्रेन हेमरेज हो गया। एयरफोर्स फिट थे, बाकी एयरफोर्स में थे वो, रिटायर के कुछ महीने बाद ही चले गए। हस्बैंड की डेथ 2017 में हुआ, ये मेरे पास पेपर है इनका। The patient comes to me at 9 May 2024, last month, है ना। इसमें केस पूरा नहीं हुआ है, पर ये जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन समझने के लिए इसको लिया है। तो हस्बैंड डेथ बिकॉज ऑफ द ब्रेन हेमरेज एंड पेशेंट हस्बैंड डाइड सडनली। See the state of the patient now. तब से मुझे 1 साल तक तो नींद ही नहीं आई। पूरा 2 किलोमीटर हम लोग घूम के आ रहे और सोए, और 3-3 बजे चले। दोपहर में, रात You can also see the conversation, how the physician asking the question and how the patient reply. अभी physician कैसे question पूछ रहा है, patient कैसे reply कर रहा है, उसमें pause क्यों आ रहा है, pause कितना आ रहा है, why there is the importance of pause in order to get the data from the patient, बराबर है कि नहीं। उसका आई कांटेक्ट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मूड कैसा है, अफेक्ट कैसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या लगा एकदम से ऐसी घटना हुई तो?
हटा नहीं सकते। कोई नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड थे। ये बेंगलोर में थे। बड़ा बेटा यूएस में था। मैं अब तक नहीं भूली। See, the husband death before 7 to 8 years. 7 to 8 years, it's a long time. जहाँ ग्रीफ bereavement होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है bereavement, नॉर्मल प्रोसेस होता है जो ग्रीफ होता है which is last for certain month, 4 months, 6 months, 1 year. There is a bereavement phase initially where the person is not accepted the condition who is in the bereavement or grief. क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो डेथ हुआ है, हस्बैंड का बोलो, वाइफ का, जो क्लोज वन, जो भी चीजें है उसके उस चीज को देखने के बाद, कपड़ों के बाद, या जो भी ये पेशेंट जो डिसीज पर्सन है वो अगर देख, उनकी चीजें अगर देखते हैं तो वो सब मेमोरी याद आ जाती है। तो पेशेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, थिंग इज गोइंग, दिस हैपेंड, बट एज द डेज गोज, एज द मंथ गोज, they try to stable himself or herself, try to make comfortable, काम पे जाना शुरू कर देते हैं, अर्निंग शुरू कर देते हैं, सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो सब चीजें भूल जाते हैं। दिस इज टाइम के साथ में चेंज होते रहता है, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस है। पर अगर 8 साल 7 साल हो गए और कोई लेडी बोल रही कि अभी भी मुझे वो याद आती है, या अभी भी तकलीफ में हूँ, या अभी भी मैं नहीं भूली, है ना, so you can see the depth of the emotions, depth of the grief, you can understand that thing. कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तब से इनके पास हूँ मैं 7 साल से। क्या लगता है वो सब याद करके? बहुत दुख होता है, जीने का मन नहीं करता। हमें हर समय ऐसे फील होता है कि अनाथ आश्रम में रहो। क्यों पर ऐसा? अकेलापन मुझे अच्छा लगता है। पर वहां पे भी तो लोग रहेंगे ना अनाथ आश्रम में, आपकी उम्र के लोग रहेंगे ना वहां पे, फिर अकेला कैसे बोलेंगे आप? अकेलापन क्यों? पहले से ही ऐसा अकेलापन अच्छा लगना कि अभी अभी लग रहा है ऐसा? अकेला अच्छा लगता है पहले से। When I ask the question again, important, what type of questions you are asking to the patient so that you get the relevant information. तो at 2 मिनट के बाद मैंने पूछा क्या लगा एकदम ऐसी घटना हुई, तो we have to understand कि उसमें the patient's feeling, the reaction, the perception about the whole incidents, and how he see that incident now, उसमें अभी क्या उसमें affect और क्या mood है because of that incidents. तो अब तक नहीं भूली, and how the react और आंसर इज अब तक नहीं भूली, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी ये सब याद करके क्या लगता है, तो बहुत दुख होता है और जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, जीने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि अनाथ आश्रम चले जाओ।
ऐसा लगता है अनाथ आश्रम चले जाओ, क्योंकि मुझे अकेलापन ही अच्छा लगता है. So there is a lonely feeling, though there is a family member present. Wants lonely and weeping. There is a no eye contact. Try to ये आप खुद नोट कीजिए, so that we will discuss in the last. नहीं, अभी क्या सोचते हैं अकेले में? अकेले में मैं अपना पूरा बीता हुआ अतीत याद करती रहती हूँ। अकेले में पूरा बीता अतीत याद करती हूँ. कॉन्स्टेंटली वही 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 याद रहती है. बराबर है. अभी जब मैंने बताया कि वो सोच के क्या लगेगा आपको? और बाकी तो पोती है ना, बच्ची है, लड़का. ने पूछा, अगर आश्रम में जा रहे हैं आप, तो आपकी पोती है, बहू है, लड़का है जो उनके साथ में रहते हैं, है ना? तो वहां तो क्यों आप जाना चाहते हैं? क्यों अकेले रहना चाहते हैं? क्यों आप खुश नहीं है उनके साथ? राइट. और वी कैन असेस कि उनके साथ आप उनका इनका आईपीआर कैसे है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पोती, विद डॉटर इन लॉ एंड विद द सन. क्योंकि उनके होते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि बात चले, मैं आश्रम चले जाऊं. वो दुख में है, रो रहे हैं, सैडनेस दिख रहा है, मैं आश्रम चले जाऊं. से वगैरह कुछ तकलीफ नहीं, उनसे कैसे जमता है आपका? उसे जीने की इच्छा नहीं होती? नहीं, लोदिंग, जीने की इच्छा नहीं है. एवरीथिंग इज देयर. छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, पोती है, इन लॉ मतलब डॉटर इन लॉ है, पर जीने की इच्छा नहीं है. See both way, the diagnostic point of view and the homeopathic point of view. ये छोटे बेटे से ही क्यों फिर यहाँ गमता नहीं आपको? बहू नहीं है क्या? मतलब बहू से बराबर ट्यूनिंग नहीं है क्या आपका? हाँ, उतना नहीं हमको। अभी देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो बहू है उनसे शायद जमता नहीं है, उसके ट्यूनिंग बराबर नहीं है ना, उनका दोनों का पट्टा नहीं है, इसलिए उसको लग रहा है कि, तो अगर ऐसा है तो उसको लगेगा कि शायद मैं बड़े बेटे के मतलब बड़े बेटे के पास जाऊं. पर वो बड़े बेटे के पास भी नहीं जाना है, जहाँ पे बहू मतलब बहू भी है, बेटा भी है, बड़ा बेटा है ना. टेक नहीं करता है, ये करता है। ये जॉब करता है, हाँ, ये भी जॉब करता है, टीचर. बहू जॉब करती है, बेटा भी जॉब करता है, वो सब बिजी रहता है, और वो ये बच्ची को थोड़ा सा देखभाल करती है. देन आस्क, और कुछ मन में विचार रहता है क्या? देन आई आस्क, और कुछ मन में विचार आते हैं? कोई हमेशा लगता है कि मतलब मुझे अकेले ही कहीं रहना चाहिए, बार बार अकेले रहता है मुझे. पर क्यों ऐसा? किसने बोला है कि आप नहीं यहाँ रह सकते या कुछ? नहीं, मेरा पर अंदर से क्यों लगता है? ऐसे ही बोझ समझती हूँ मैं अपने आप को. अकेले ही रहना है, किसी ने कुछ बोला नहीं, सब ठीक है, बराबर है कि नहीं, पर अकेले ही रहना है, क्योंकि देर इज अ, मैं अपने आप को बोझ समझती हूँ. दिस इज द वर्थलेस फीलिंग which is even more characteristically seen in the
Which type of patient we have to decide. Worthless feeling कि मैं बोझ हूँ, loathing of life, है ना, कि मतलब अभी जीना ही नहीं है, जीने में कुछ रखा ही नहीं है. मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे हस्बैंड की पेंशन आती है मुझे. तो दिन में एक बार जब अकेले होती तो खूब रोती. मतलब अकेले रह के रोती रहती है, किसी को शेयर नहीं करते. अभी अगेन इम्पोर्टेंट, अभी ये इसलिए हमको रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सा क्लिनिकल कंडीशन. पहले भी रिफ्लेक्ट किया है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, तो उससे कुछ तसल्ली मिलती है आपको? उससे कुछ अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि और दुखी हो जाते हैं? और वो देखते तो मन हल्का होता है, और तो कोई रहता नहीं. ऐसे अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते, कोई मन की बात ऐसी? क्यों? मैं ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ, सब डॉक्टर, कोई किसी का सुनता नहीं. सब एम्स के ही डॉक्टर. तो उनके आपके उम्र के उनके मम्मी पापा होते होंगे जैसे? छोटी छोटी बातें वहां तक जाती. What I am trying to assess is the interest in the other activity. लोगों में मिलती है क्या, सोशल है क्या, सोसाइटी जैसे एम्स, वहां पे मतलब एम्स में है लड़का, तो जो उनका पूरा सिस्टम है, फ्लैट है ना, तो काफी लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो इनके उम्र के होंगे, तो आप उनके साथ नहीं रहती है क्या, तो नहीं. मतलब ये 2-2 3-3 महीने घर से बाहर नहीं निकलती. सी द स्टेट ऑफ माइंड. जाती नहीं. बाहर कहीं नहीं जाते. नहीं तो कहीं तो रह जाता है बाहर, बहू जाती है, घूमने जाते हैं, पर ये नहीं जाते. डोंट गेट द प्लीजर, डोंट गेट द हैप्पीनेस इन द अदर एक्टिविटी. ना, सब सीनियर सिटीजन साथ में आते हैं, बातें मैं करते नहीं हैं. जाती. कभी ऐसा हुआ है क्या आप गए, आप इंसल्ट जैसे कुछ ऐसे मैं जाती नहीं, 2 महीने में नीचे नहीं उतरती. वाह, क्यों इंसल्ट, मतलब क्यों? एक ही बिरादरी के है सब? कभी इंसल्ट होती है इसलिए जाती नहीं. क्यों इंसल्ट, मतलब क्यों? मतलब उनका ये था कि गए, जो एक ही सब डॉक्टर लोग ही हैं, उनकी फैमिली है, तो इंसल्ट फील हो सकता है, ऐसा उनका कहना था. So when the patient saying this, like this denote the sensitivity of the patient. This is belongs to a dispositional quality, not this state quality. This is belongs to a constitutional feature, the sensitivity to insult, which is important while prescribing the constitutional remedy. नहीं पसंद करती. कभी तो अकेलापन बहुत अच्छा लगता है. बाहर निकलना घूमना पसंद. बाहर निकलना, घूमना पहले पसंद. जाती थी, जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए. तो ऐसा दिस इज नॉट सिंस द बिगिनिंग, है ना, चाइल्डहुड से ऐसी है क्या, नहीं. जब से हस्बैंड गए हैं तब से. जब हस्बैंड थे तो बाहर निकलती थी, घूमती थी. हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो घूमना फिरना, मस्ती करना, मजा करना सब चलता था. मुझे पसंद है. बट सिंस द डेथ ऑफ द पहले की लाइफ कैसे थी जब सब थे? इनकी पहले की लाइफ कैसे कैसे? हस्बैंड थे. मेरे हस्बैंड डिमार्केशन फॉर द मॉर्बिड कंडीशन तो वो भी तो बिजी रहते होंगे ड्यूरिंग द मॉर्बिड. आप उनके साथ ही रहते थे हमेशा कि? नहीं, बच्चे जब पढ़ने लगे बंगलोर में तो मैं वहीं सेटल हो गई. पर जब बच्चों को छुट्टी होती तो हम जाते हैं, 2-3 महीने में आते थे. साल में उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती. कभी कभी 6 महीने का बंगलोर का कोर्स ले लेते. बहुत अटैच थे आप उनसे. मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे जाते, 1:30 बजे आ जाते. ओके. तो दिन में घर में रहते दिन भर? उतना ही ड्यूटी था. अरे कैसे थे उन, नेचर उनका कैसे था असल का? टेक्निकल अफसर थे. दोनों
आई आस्क्ड कि हस्बैंड का नेचर कैसे था? तुम्हें कैसे रहता था आपका टीवी? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा नेचर। मुझे तो आज तक लगता ही नहीं कि चले। मैं निकली नहीं उस समय Expression, से see बाहर। the affect and mood. मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो नहीं है कर, वो चले गए कर। मेरे पास कोई होता है मैं तब भी वहीं होती हूँ। मेरे पास कोई होता है तब भी वो पुराने दिनों में वो दुख में ही रहती हूँ मैं अभी यहाँ पे हूँ तो भी मेरा मन वहीं पे है। आप चाहते हैं इससे बाहर निकलना चाहिए करके? See, what I am trying to assess is the insight, कि पेशेंट का इनसाइट जजमेंट कैसा है, कि उनको क्या हुआ है और इससे बाहर निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं और उनको कैसे सपोर्ट और हेल्प किया जाए। तो वेदर यू आर रियली लाइक टू कम आउट ऑफ दिस स्टेट। आज तक भूल नहीं पाते। मैं आपके पास ही बैठी तो मेरा ध्यान वही है। हाँ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं आपके पास बैठी हूँ पर मेरा ध्यान उनमें ही है। तो इनसाइट अबाउट द डिसीज कैसा है? क्या क्या दिमाग में क्या चीज आ रही है? क्यों चले? दिमाग में क्या है, क्यों चले गए? मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा होगा तो मेरे। इसका जवाब तो है ना, सभी का अपना लाइफ होता है, जब उसकी समय आ जाता है वो चले जाते हैं। So this is the state. You have to understand mentals. You have to do this mental state examination and come to the clinical diagnosis. This is the easy case so that you can able to understand the state of mind and the person understanding too. Right? So what is this case belongs to which disease, which psychiatric disease? Anyone please share? Patient suffered with which disease? Anxiety disorder, mood disorder, delusional disorder, somatization. Please share your view so that I can know how much you can understand this thing. So it belongs to mood disorder, Dr. Yashashvi. So depression है, क्या है? Depression है. Try to assess with respect to the mental state examination so that ऐसा है कि हम जब ये शुरुआत करेंगे, ऐसा करने में तो हमको हर केस में नहीं करना पड़ेगा, बट इनिशियल में इसमें आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अपीयरेंस कैसा है, स्पीच कैसा है, मूड एंड अफेक्ट कैसा है, परसेप्शन कैसा है, हेलुसिनेशन है क्या, इल्यूजन है क्या, डिल्यूजन है क्या, थॉट कंटेंट कैसा है, सुसाइडल। आगे में भी उसने कि मुझे जीना नहीं है, ऐसा लगता है कि बस सुसाइड कर लेना। सो देयर वाज अ सुसाइडल थॉट आल्सो। इनसाइट कैसा है, इनसाइट कैसा है, इनसाइट अच्छा है पेशेंट का अबाउट द डिसीज। अपीयरेंस कैसा है, सैड है, टीयरफुल है, सैडनेस है, आई टू कांटेक्ट है, बिहेवियर में आई टू आई कांटेक्ट, देयर इज अ पुअर आई टू आई कांटेक्ट एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन। यू कैन सी फिजिकल एक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द जो बोल रहे हैं, बोलना भी एकदम स्लो है और मोनोटोनस है। स्पीच कैसा है, लिसन इट केयरफुली, स्पीच कैसा है, स्लो है, मोनोटोनस एंड स्लो है। मूड एंड अफेक्ट कैसा है, सब्जेक्टिवली मूड लो है, ऑब्जेक्टिवली भी लो है, पर कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जो चल रहा है मूड और अफेक्ट कॉन्ग्रुएंट है, ये डिसकॉन्ग्रुएंट नहीं है। थॉट क्या है,
कुछ होपलेसनेस है, कुछ ऐसा बर्डन फील कर रही है ना? क्या क्या बताया पेशेंट ने? बोझ लगता है मुझे, बोझ। तो पेशेंट क्या फील कर रही है? बर्डन फील कर रही है खुद को। कोग्निशन कैसा है? ओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस पर्सन, ये सब है पेशेंट में। ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, तो कोग्निशन इज इंटैक्ट। इनसाइट कैसा है? इनसाइट पुअर है। इनसाइट एंड जजमेंट पुअर है या पार्शियल है, इम्पेयर्ड है। जजमेंट इम्पेयर्ड है, इनसाइट पुअर है। रिस्क इसमें, अभी रिस्क भी एक रहता है मैनेजमेंट में। रिस्क क्या है? ये सुसाइडल थॉट है इसमें, पर ये किसी को हार्म वगैरह नहीं कर रही है, पर सुसाइडल थॉट है इसमें। कभी कभी सीवियर डिप्रेशन में हार्म करते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दिस इज अ केस ऑफ डिप्रेशन, बट जस्ट डिप्रेशन लिखने से अच्छा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वेयर देयर इज अ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? मूड डिसऑर्डर में क्या आता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्थाइमिया। तो इसमें सिंगल एपिसोड भी आ सकता है डिप्रेशन का, या रिकरेंट एपिसोड भी आ। अभी रिकरेंट और सिंगल एपिसोड है तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर। सो माइल्ड मॉडरेट और सीवियर। अभी इसमें विथ साइकोटिक फीचर है कि नहीं है? विथ साइकोटिक फीचर मतलब डिल्यूजन्स भी इसमें आ जाते हैं, तो दिस एंटिटी विल बी देन डिफरेंट, राइट? सो मेजर डिप्रेसिव डिसीज में क्या आता है? It is a mood disorder that cause persistent feeling of sadness and loss of interest. This loss of interest जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहले इंटरेस्ट होता था, खुश होती थी, अभी कहीं बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, सोशल एक्टिविटी कुछ नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, मूड एकदम मूड मूड लो हो गया है, नींद में डिस्टरबेंस है, इसमें स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। एक तो नींद आने में देर होती है, या फिर जल्दी सुबह जल्दी खुल जाती है। तो स्लीप डिसऑर्डर इज एपेटाइट लॉस्ट हो जाता है, एपेटाइट डिमिनिश हो जाता है। एंड समटाइम देयर बी यू मे फील एज इफ द पेशेंट में फील एज इफ द लाइफ इजंट वर्थ लिविंग। जैसे पेशेंट ने बोला ना, मुझे लाइफ अभी बोझ लगती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। देयर इज अ, विद दिस देयर इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, एम्प्टीनेस एंड होपलेसनेस। एंग्री आउटबर्स्ट, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन है, एंग्री आउटबर्स्ट होता है जो पेशेंट में अभी नहीं है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस इंक्लूडिंग इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच, दोनों हो सकता है। एक तो इंसोम्निया भी, या ड्रॉजीनेस, स्लीपीनेस, कंटिन्यू पड़े रहना। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, एंजाइटी, स्लो थिंकिंग, slow movement of the body, feeling of worthlessness, guilt feeling, right? So all this indicates the, what it indicates the, it indicates towards the, this is the case of major depressive disorder, right? So diagnostically you have to be clear. अभी इसमें जो जितना वीडियो है उसमें से दिस, हाँ, अभी अगर होम्योपैथिक अप्रोच ज्यादा इसमें नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पर दिस इज वी हाउ टू प्रिस्क्राइब, क्या देना है, एक्यूट मेडिसिन देना है, स्टेट मेडिसिन देना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से डेथ हुआ है तब से यही स्टेट में हुआ है, 7 साल से एक ही स्टेट में है। तो इसको, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है कि स्टेट मेडिसिन देना है, एक्यूट का तो कुछ सवाल नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस person, this patient need a state remedy. This person need a state remedy. You have to be, comes this person out of this state and then give the constitutional remedy on the basis of all this sensitivity and other. Might be ऐसा भी हो सकता है state और constitutional remedy same। क्या state medicine देना है? Because after giving the medicine in the 10 dose, 10 power, जो कहीं कभी जाती नहीं थी, आफ्टर 1 month, दूसरे 15 दिन में तो लड़का ही आया था मेडिसिन के लिए। उसके बाद जब आई तो she was smiling, the face texture, face expression was change। उसका वीडियो मैंने नहीं लिया। और इम्पोर्टेंट, मैंने जो एडवाइस किया था पेशेंट को कि आपको सुबह घूमने जाना है, आपके उम्र के जो भी है ना, बिकॉज वी हैव टू मेक द पेशेंट सोशल। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट है कि पेशेंट को अकेला मत रहने दो, अपनी सोच में मत रहने दो। इससे स्टेट को बाहर निकलना है तो पहले तो पेशेंट को बातें करना
सीखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोलिए, योगा प्राणायाम करने के लिए बोलिए, जो उनके उम्र के हैं उनके साथ समय बिताने के लिए बोलिए, जो प्लीजरेबल एक्टिविटी है उनको, जैसे बच्ची के साथ में खेलना ये है। तो सुबह घूमने जाना उन्होंने शुरू किया था, जबकि वो पॉसिबल नहीं हुआ, जबकि लड़का हमेशा बोलता है उनको, मम्मी यहाँ चलो, मम्मी वहां चलो, बाहर घूमने, मैं घूमने लेके जाता हूँ, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट द स्टिमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक राइट मेडिसिन मेक इट पॉसिबल, कि लड़का भी बोले डॉक्टर साहब आपने बोले तो मम्मी ने सुन लिया, कि अभी वो बाहर घूमने भी जाने लगी, हम बाहर भी लेके गए, है ना, खुश भी थी, और पेशेंट का मूड जब पूछा कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, दो देर इज अ नो मच चेंजेस, सोरियासिस में भी चेंजेस था बट नॉट मच एक्सटेंसिव, एक महीने में बहुत ज्यादा हम चेंज भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट द थिंग इज दैट द सुसाइडल थॉट, this interest lost and loathing of life, this is the most important symptom that needs to be first vanish, not a psoriatic patch, बराबर है कि नहीं? So remedy, yeah, so you are very intelligent doctors, the remedy what suggested by the doctor is absolutely right, and the remedy was given on the basis of, not on the basis of grief and sadness, all this, the point is that कि अभी भी मुझे वो लगता है कि जिंदा है, अभी भी वो वही दुख में है जो 7 साल पहले जो गुजरा था, the patient is not coming out of it, अभी भी ऐसे कि अभी मरे हैं, अभी भी ऐसे लग रहा है कि अभी वो जो, जब जैसा किसी का जैसे अभी डेथ हुआ है हस्बैंड का, तो वो जो ग्रीफ रहता है, जो इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी अभी भी उतनी है। this is the characteristic you can see in the, this is not brooding is the psychosis, but ये है कि अभी भी दुख वैसे के वैसा ही है, that's why it is the ignatia. So ignatia given in the 10M form and 1 dose, and still I am waiting कि अभी ये सोरियासिस इंप्रूव कितना होता है, और फिर मैं इवेल्युएट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा को, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को प्रिस्क्राइब करूंगा, राइट? So thank you very much.